so much for being here. Kushal or Kushal? How do I start? How do I Kushal, pronounce Kushal. Kushal? Right? Yeah. Nice, interesting. How are you doing? How keeps the grind in Delhi? How's life away from Australia? This is an absolute honor to have you here. I'm glad I get to meet people younger than myself that are twice as smart. How's life, bro? I'm good. I'm really good. I mean, Yeah. stuck in Delhi for the Uh-huh. past 5 or 6 months. Yep. Huh. So, And I otherwise, mean, you're in Australia, right? yeah, I'm studying in Australia. What I'm do doing my you undergrad. undergrad? Yep. Is there a focus to your undergrad? Yep. International relations and criminology. Criminology and international relations. Yep. Because those are two very interesting and Yep. fairly separate streams of like academic disciplines, right? Yeah. So one takes care of, so international relations looks after the world affairs, Hmm. and criminology as in looks into the society and how people commit crimes and how do they evolve into criminals and like that. Right. So criminology looks into the policing aspect of scientific policing and the psychological policing and everything. Hmm. So this whole idea, tell me what how I make sense of it. Yeah, there was there was this whole debate about white on black crime or white on black parasitic um, engagements in America. Then Yep. there is this whole conversation about Brahmins exploiting the Dalits, right? Yep. Like, but when you come to see the data, what people show me the data as is that black on black violence is peak, right? Yep. Likewise, Dalit Muslim violence, Muslim Dalit violence is the highest. Right. And what the argument these guys make after that is that most of, let's say, violent criminal activities Yep. are systemic. They're not as much, they're not governed by ancient or historical social relationships as much as they are with present day economic relationships. Yep. Is that like an obvious finding that you guys start with? Is that something you arrive at? Is that contested? Like, how does the world of criminology look at that? I mean, there are two sides to it. Okay, before I start, Hmm. let me just thank Nimish for tagging me in that post. That's how we It made connected. your day. It made your life, huh? Yeah, Thank God actually. I'm at Prakar's podcast. Yes. Thank you very much. And let me thank all the IPS officers, all the police officers who have helped me in the research. Thank you, Arpit, and thank you, Jamie, the two researchers of Shout police. out, guys. Yeah. So coming to your question, criminology के भी there are two parts. One says कि नहीं, some races are really violent, and the other side says no, it's because of the economic reasons. पैसे नहीं हैं उनके पास, so they commit crimes. So there are two kinds to it. There are two sides to it, right? So it depends. Like दोनों side के पास they have very concrete evidences. कि एक side बोलती है कि the side which says कि it's racial and everything, they also have facts to back their claims. And on Are the those other, facts like on genetic level? Is like that kind? Because it sounds like a very what would be considered a very racist argument, won't you I say? mean, I'm in Australia, Hmm. and वहाँ पे they say कि जो वहाँ के aboriginals हैं, Hmm. वो they are incarcerated, मतलब वो ज़्यादा जेल में जाते हैं, chances उनका जाना ज़्यादा है. Hmm. So I believe I worked with a couple of Australian government commissions and everything. So in my findings, I noticed कि ये क्यों जाते हैं जेल, क्यों ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल्स जो वहाँ के आदिवासी as we can call them, क्यों जाते हैं ज़्यादा जेल? It's because जो ऑस्ट्रेलिया की पुलिस है, they are not able to understand उनका culture. So some things जो अबॉरिजिनल्स को के लिए लीगल होगा, वो ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के लिए लीगल नहीं होगा, राइट? जैसे ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम, राइट? ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड, but many a times these aboriginals are found to be drinking in public, which is kind of legal for them. But What do not you for mean the- legal for them? You mean like in their code of conduct kind of a They thing? think, yeah, they think that it is legal. So many a times they are caught, but they think that it is legal, right? So ये मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, शायद से यूएस में भी हो सके, but I have not focused much on American side, but हाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए I can tell you कि it's about misunderstanding. And I wouldn't say कि I wouldn't just squash that argument कि ऑस्ट्रेलिया की police is not racial, they are. है प्रॉब्लम थोड़ा, बट या वो सभी प्रॉब्लम्स आता है, कलर का Right. प्रॉब्लम है, हाँ. Right.
So in general, criminology goes over some kind of criminal psychology, or Yes. like the statistics of crime, Everything. everything, right? Everything. Yeah. Hmm. So it And how? depends upon you. कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आप परस्यू करते हैं. Like I'm pursuing policing, right? But Hmm. in my course, it's more about criminal psychology, um, how serial killers evolve, क्यों बनते हैं serial killers, क्या क्यों बनते हैं? जैसे after reading a lot of cases, जो मेरे को समझ में आता है, I might be wrong in this. बहुत सारे से सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं आपके लाइफ में जो एक साथ जब फॉल इन करते हैं एक साथ, तो फिर देन यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ एंड फिर आप धीरे धीरे करके फ्रस्ट्रेशन निकालने लगते हैं जो कि विच टर्न्स आउट टू बी क्रिमिनल एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल एक मैं सीरियल किलर का केस पढ़ रहा था, कैनेडियन सीरियल किलर था. He wanted to join the police, but I think he fell from a tree and broke his leg, and then he developed a permanent injury. So he was rejected for the police. And फिर घर में domestic violence, when he was small, his father used to beat him up. So this is one common trait that I have noticed कि father अगर ठीक से treat नहीं करे बच्चे को, and father if he regularly beats that child during his or her childhood, then उस पे दिमाग पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है. दैट्स हाउ दे टर्न इनटू क्रिमिनल्स. एंड एक इवेंट नहीं, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होने चाहिए जिससे कि लाइक पैसे की कमी है, फादर मारते हैं घर पे, जॉब एक डिजायरेबल जॉब जो आप शुरू से सोचते थे कि मैं लूंगा वो नहीं मिल पाया. तो these things when they fall in one line, then you become a criminal. It is very interesting. पता है, the word frustration. हम लोग ना, when we speak about frustration, we discard it, especially in the context of mental health and whatnot. When we speak about Right. frustration, Right. it is very easy to discard the whole notion by saying, "अरे frustration ही तो है." Like this is like an everyday thing. यार, everybody is frustrated. Yeah. But when you consider the psychoanalytical definition of frustration, because psychoanalysis, psychology is the domain I come from. Yep. Frustration is probably at the center of all human behavioral patterns. Yep. Right? So the idea is that the child is young, the child demands something. क्योंकि the only way the child knows how to negotiate with his environment or her environment is by demanding. खुद तो कुछ नहीं कर सकता ना, mama, bottle, whatever. Exactly. And the parent holds it off for whatever reason. Or the child demands something from the environment holds it off. और वहां से ना frustration develop होनी शुरू होती है. Because the child's like, please, starts crying, and that codes for behavioral patterns. So it is very possible. And it is also very possible, as far as literature I've read, that abuse leads to some kind of a magnified abuse. Right? Like the fact that my father was abusive leads to some kind of, the sins of the father, that statement that people use is a very accurate statement in that sense. Like, I don't know if that happens with you, but as I grow up more and more, I realize how alike, how disalike, how much in reference, how much in congruence do I exist to my own father. You know what I mean? Like, it's sometimes I feel like I'm taking on the role like he for others in my jo at least Prakhar ke pravachan wala venture that he did not take up for me. And I'm just giving an example. That might not be the case, but it's kind of like that, right? Sometimes it feels like it was exactly the role he had in my life that I'm taking for all these other kids who are listening to me talk about, whatever philosophy. Yeah, exactly. That is very So that reminds me of Japan ki police. So they are really into all these things. Like they want to identify who is suffering, and they want to stop it in the early stages. So they go to the they go to the schools, they talk to the students, they talk to the teachers कि identify करिए कि किसके parents जो हैं abusive हैं, कौन early signs of deviance ये सब show करता है. Right? So they're really interested into all these things, and they want to stop crime. Like, why do you want to set the ball rolling? क्यों criminal बनने पहले दें कि फिर उसको जेल भेजें, इससे पहले क्या पहले रोक सकते हैं? They are really into all these things. They have also this concept of Koban. So what is Koban? Koban is like a police box. छोटा सा एक compartment रहता है. They have a couple of policemen, and you can always walk into that Koban and you can talk to them. And so वहाँ पे scene क्या है कि parents are encouraged that if your child is facing all these things, if your child is showing these points, they have given a chart or something like that, that if your child is showing these points, showing all these signs, please bring that child to us. Please bring him for counseling. Please bring her for counseling, so that we can stop him or her from going to jail. And Japanese prosecution system is like, अगर आपने complain कर दिया, you will be in jail. अगर मैंने आपके against complain कर दिया, you will be in jail. मतलब बड़े honest cops हैं.
honest cops नहीं है honest. So okay, we'll come to that. जापान की पुलिस, it's like अगर मैंने आप पे कंप्लेन किया कि let's say कुछ भी, they will come, they'll arrest you and they'll put you in custody, and I think 23 days की होता है, I'm not sure about the number, and वहाँ पे आपका interrogation होता है, like कोई torture नहीं, कुछ नहीं, but they'll mentally harass you कि confess your crime, this and that, they'll just persuade कि आप confess कर लें, right? And then you just break down, like 23 days या 14 days जितना भी होता है, you just break down कि हाँ ठीक है मैंने किया है. So इसीलिए बोलते हैं कि जापान में अगर आप पे कोई कंप्लेन कर दे तो इट्स बेटर कि आप भाग जाएं than to prove your innocence. इतना खराब है. हाँ, and Japanese police is one of the most professional police forces in the world. How is this professional? How is this behavior professional? Yeah, so the thing is that you just don't calculate just one thing, right? आपको बहुत सारी चीज़ों को calculate करना पड़ेगा कि कैसे profession होती है, like how do I say, कि सबसे बड़ा चीज़ होता है कि how is the public police relations Japan में? Are the people satisfied? Yeah, people are really satisfied with the police force. Surely not foreigners. जापान की पुलिस का दो बड़ा बहुत प्रॉब्लम है. एक तो मैंने बताया कि उनका इंटरोगेशन, एंड दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि दे आर बहुत रेसिस्ट. सो if a dark skinned guy या brown skin जैसे हम लोग, if we are walking the streets of Tokyo, chances are high that we'll be stopped by a policeman in Tokyo and they'll just frisk us. So वो थोड़ा सा वहाँ पे है. So all these things, जापान की पुलिस बहुत प्रोफेशनल है. Scandinavian police forces are really professional. तो इन सब चीजों में है. Like they're not cutting corners? Is that what you mean? But like, I mean, yaar, dekh, for me, as far as the operational goes, I've only seen the Indian police force. Right? And I've just seen shit, bro. Like, I've really seen a lot of shit. You understand that, right? Right. So in the sense कि होगा क्या? Suppose XYZ का accident होता है किसी से. XYZ के पास Audi है, सामने वाले के पास कोई ऐसी Santro है, ठीक है? Like it does not appear from his car choice that he's wealthy. Yeah. Now the police needs to settle it. So they will bloody harass you for 6-7 hours for the party that has the money to pay up on behalf of both of them, regardless of whose error it was. And this is a true circumstance I witnessed firsthand. I was not in either of the cars, but I was part of it. I was there in the police station watching this happen. Yeah. And so like that is a cutting of the corner, right? Like we need to settle this, but we'll settle it in a way where we make whatever fucking, money benefit. Yeah. Is it similar? Is it similar? Or is that what you mean when you say that those police forces are more professional, they don't cut corners? Yeah, in many aspects they're not corrupt. Police in Scandinavian countries, Sweden, Denmark तो नहीं, but Sweden, Finland, Norway, they are not corrupt. Japan की भी they're not corrupt. And the problem is कि their police का training focuses more on policing than on military aspects. So policing in India, or the police training in India, focuses more on the military aspect. उनकी police training focuses कि how should you interact with the victim, how should you ask questions, right? How do you approach a rape victim, how do you approach a victim of assault, उस टाइप की. इंडिया की पुलिस में ट्रेनिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, right? We focus more on डंडा चलाने वाला aspect than on soft approaches and यार तेरे को लगता है soft approaches की space है कोई? Training, if you upgrade the training, why not? अरे मेरा मतलब ये है यार कि मेरे को ना like to say that the police needs to soften, I think is only looking at the problem in only one dimension, which is that that the police is harsh on the people. Well, the police, there is also immense political pressure on the police. Well, there is all, so like there is a combination of dimensions that come together to sort of create this new equilibrium, the kind that we have in this right. And I want to get to that. I want to talk about this phenomena of police in India, right? But I want to understand if there is any space at all for the police to get softer without compromising on outcomes in India. Yeah, absolutely. I mean, first of all, you need to separate the duties of the policeman, right? कौन public से interact करेगा, right? तो जो public से interact करेंगे, they should be soft. They should be imparted with speaking skills. कि आप कैसे बात करेंगे, आप तमीज से बात करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे, right? क्योंकि आप पुलिस से interact तभी करते हैं when you're
when you're in a situation, right? When you're distressed, and when you approach the police station, when you approach the policeman, you approach him or her with high hopes कि हाँ मैं जा रहा हूँ तो I'll get some help, right? So policeman or police personnel should understand कि पुलिस आपसे लोग मजाक के लिए इंटरेक्ट नहीं करते हैं, आपसे लोग हेल्प मांगने के लिए इंटरेक्ट करते हैं. सो आपको यू हैव टू सिंपैथाइज विद द विक्टिम, राइट? आप कितना सिंपैथाइज करते हैं उसके साथ, आप कैसे बात करते हैं रेप विक्टिम से, आप कैसे बात करते हैं, आप उससे हार्श क्वेश्चंस तो नहीं पूछते हैं, राइट? दिस ऑस्ट्रेलिया की पुलिस, ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ज्यादा केसेस होते थे पहले. सो मेरे को अभी तक याद है, देयर वाज वन पुलिसमैन, he told me कि उसके सीनियर एक बार he was posted at a police station and एक a lady walks in, she was a victim of domestic violence. तो so she said कि हाँ मेरे साथ मारपीट हुआ है करके. तो पुलिसमैन blatantly said कि हाँ ठीक है मारपीट, that's your private issue, just get out of the police station, right? So ऑस्ट्रेलिया में ये सारे प्रॉब्लम्स थे, अभी भी प्रॉब्लम्स हैं. तो बस हमें लगता है कि उन कंट्रीज में प्रॉब्लम्स नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम्स है. फर्स्ट वर्ल्ड में क्यों नहीं प्रॉब्लम्स? हम अमेरिका में देख तो रहे हैं. या एग्जैक्टली, अमेरिका की पुलिस कोई अच्छी पुलिस थोड़ी है. बट देख मतलब पता है क्या है, एवरी टाइम I'm not going to be the one to say America does not have to be or need to be or has any space to be criticized. But right, there is enough problems with America as a whole, right? Yeah, not exactly. denying. Yeah. But hota kya hai? Sometimes we engage in this weird fantastic notion where if we can find enough flaws in America, we don't have to feel the flaws in our own system, and that irks me, right? It's like, oh, America की politics भी तो ऐसी है भाई. मैं मना नहीं कर रहा, बहुत बहुत प्रॉब्लम है अमेरिका की पॉलिटिक्स में, बट एक बार झांक के तो देखो अपने गिरेबान में कि क्या मसाला ऑमलेट बनाए हुए हो यार अंदर. लाइक यू अंडरस्टैंड, लाइक देयर इज अ डिग्री टू द प्रॉब्लम एंड our degrees are far more in degree, and there is a lot more primitivity in the way our problems shape up than in countries like Australia and America, and we need to be aware of that so we can work towards a better model, whatever that might be. Exactly. Right? Unless we're willing to acknowledge truthfully what our flaws are, we cannot really move the next move on the board, right? Exactly. To use a chess analogy. And so, of course, right, the American police has a problem, and whatever that problem might be cannot be the cause of our concern, quite literally. But our police, Kushal, the nation wants to know. The nation wants to know what is up with our guys, man. Why is it? यार मतलब पता है, this is how an average citizen who's not concerned with the police on an everyday level would frame the police in their head. The police are the, let's just say, the fingers of state power. There is no autonomous credibility that we attribute to the police कि ये मतलब अपने आप में देखो कितनी respectable बात है, right? There is a mutual disrespect between the police and the people. We don't think they carry any real power. We think they're instruments at best, instruments of viler motivations than what we'd want them to be. And it is almost as if the police is a symbolic resolution to problems. Like अगर तुम कहीं भी चले जाओ गाँव में, ठीक है, इवन मेरे शहर जैसे शहरों में भी भाई प्रॉब्लम डंडेबाजी से ही सॉल्व होती है, अपने में आके जाके लड़ जाते हैं, पुलिस वालों को बताने की बात होती है, अनलेस समझ रहा है कोई एक सॉफ्टर क्राइम हैज बीन कमिटेड, है ना? तो ये, is that a fair characterization? First of all, have I been very unsympathetic? Can I be more sympathetic in the interpretation of the Indian police? What do you think? No, absolutely. How you describe the police force is very apt. मतलब बहुत to the point. अपनी किताब में लिख लिया PhD में. बहुत appropriate description आपने दिया that police force is political tool है एक ये, right? Politicians use them to flex their power, right? There's one IG, Inspector General. His name is Abhinav Kumar. He said on one of the shows that हम जो है ना शिकारी कुत्ते हैं स्टेट के, ठीक है, शिकारी कुत्ता हमें ऐसे छोड़ता है, मतलब हमारा मास्टर हमें छोड़ता है, जाओ उसको पकड़ो. We go, we arrest that guy, we bring him to the police station, beat the shit out of that guy, and जो फिर आप समझते हैं क्या होता है, फिर हम कोर्ट को हाथ में दे देते हैं, राइट? तो फिर वही सीन है कि जो पॉलिटिकल मशीनरी इस कंट्री की, they never want the police force to be autonomous. They'll never want, क्योंकि अगर पुलिस हाथ से निकल जाएगी तो वो वापस पॉलिटिशियंस को आके जेल में डाल देंगे.
That's how the politicians think कि हमने तो खुद क्राइम कर रखा है, राइट? तो अगर हम अभी पुलिस वालों को छूट दे देंगे तो वापस हम ही पुलिस उसमें डाल देंगे जेल में। तो इससे अच्छा कि उनको कभी करो ही नहीं, उनको छोड़ो ही नहीं, राइट? हम आए हैं, हम पावर में हैं, तो हम ऑपोजिशन वाले एमएलए को तंग करेंगे, वो पावर में आएंगे, वो हमें तंग करेंगे। That's how it goes. That's how the machinery goes. तो ये जो this control that the politicians have over the police, is that embedded in law or is that like a, क्या मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि स्टेट वाइज कोई अलग पॉलिसी होती है पुलिस और गवर्नमेंट के रिलेशनशिप की, क्या सीन है? तो So the thing is कि ऐसे तो obviously, I mean, the elected representatives are the chiefs, right? But you still expect कि police should carry out fair and unbiased investigations, right? But अगर पुलिस पहुंचती है तो वो देखती है कि ऑपोजिशन वाले मतलब रूलिंग पार्टी वाले लोगों के उसमें है, मतलब रूलिंग पार्टी वाले इन्वॉल्व है इस क्राइम में, तो नहीं छोड़ दो साहब, अभी हमारा ट्रांसफर आएगा। It is the system which has created this, क्योंकि कोई पुलिस वाला नहीं चाहेगा कि मेरा ट्रांसफर कोई दूर दराज वाले इलाके में हो जाए, राइट? स्टेट तो वही रहेगा बट दूर दराज वाले इलाके में हो जाए। कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका जो ट्रांसफर है ऐसे मतलब अजीब से डिपार्टमेंट में हो जाए, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। आई मीन नो वन वांट्स टू गो टू स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, या होम गार्ड्स में हो जाए, या फायर डिपार्टमेंट में हो जाए, राइट? नो वन वांट्स टू टेक अप ऑल दीज पोस्टिंग्स, राइट? तो इसीलिए दे सकम टू पॉलिटिकल प्रेशर। आई मीन आई पर्सनली नो अ गाय, आई पर्सनली नो एन आईपीएस ऑफिसर who took on a very senior police officer and now वो तो ऐसे हैं, वो फंस गए। दो पुलिस वालों को मैं जानता हूँ। नहीं वो तो ठीक है यार कुशल, देख मतलब मेरा क्वेश्चन तो ये था कि ये जो पुलिस पॉलिटिशियन नेक्सस है, ये फैसिलिटेट करने का कोई, इज दैट लाइक एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि इनके पास पावर्स हैं ट्रांसफर डिसाइड? क्योंकि देख ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं होता इधर पुलिस वालों को काम करने वक्त कि ट्रांसफर कर देगा कोई, वहां पे क्या सीन, लाइक व्हाट इज इट दैट इज यूनिक अबाउट आवर इकोसिस्टम कि हमारे पुलिसमैन एंड अप बीइंग इन दैट काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर दे आर वल्नरेबल टू द विल्स ऑफ समवन एल्स? रूल्स तो एक्चुअली में वही मैंडेट करते हैं कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो ट्रांसफर कर सकें, राइट? वो सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग था 2006 में, बहुत बड़ा रूलिंग था ये, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था आई थिंक नाम उसका केस का। 2006 में रूलिंग आया था कि पुलिस के जो चीफ्स होते हैं, जो डीजीपीज होते हैं स्टेट के, उनका टेन्योर फिक्स्ड होगा, यू कैन नॉट चेंज दैट टेन्योर। आई थिंक 2 साल है 3 साल है, तभी भी स्टेट्स वायलेट करते हैं इसको। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दे रखा है दैट द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट इंटरवीन इन ट्रांसफर्स एंड ऑल, बट तभी भी ट्रांसफर्स होते हैं, राइट? तो चीफ दे हैव फाउंड देयर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वे अराउंड टू ऑल दीज थिंग्स। चाहे जितना भी आप ट्राई कर लो, दे विल फाइंड अ वे अराउंड। तो बाकी देशों में क्यों नहीं होता ऐसा? लाइक व्हाट इज यूनिक अबाउट, वहां पे अलग क्या हो रहा है, वहां पे ये डर क्यों नहीं है? ऐसा क्या हमारे लोग करप्ट है बस, या मतलब हमारे पास हमारे सिस्टेमिक एक फ्रेजिलिटी ज्यादा है, एक लीगल पावर ऐसी एग्जीक्यूटिव्स के पास ज्यादा है जो बाकी देशों में नहीं है? क्या सीन है? हाँ, हमारे देशों में हमने ज्यादा पावर्स दे रखे हैं एज कम्पेयर टू और भी, और ऐसा नहीं कि बाकी देशों में पुलिस मतलब पॉलिटिशियंस इन्फ्लुएंशियल नहीं है। हाँ ऑब्वियसली है। यूएस का एक बहुत फेमस एक वीडियो है यूट्यूब पे कि एक पुलिस ऑफिसर एक जज को, वहाँ पे जजेस को तो बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं यूएस में, आई मीन हर जगह होती हैं, वो उसको रोकता है पुलिस जज को, एंड ही वॉक्स अप टू द कार एंड ही सेज दैट तुम जानते हो तुम किसको रोके हो? तो ही इज लाइक नो सर। तो वो बोलता है कि या यू बेटर चेक द नंबर प्लेट, लाइक राइट, दे हैव देयर कंप्यूटर्स राइट इन द कार्स। So he walks back to his car and checks the number plate, and he only to be shocked कि ये किसी जज का गाड़ी है। तो उन्हें जाने दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, राइट? तो पुलिस वाले वहां पे भी डरते हैं, वहां पे भी डर है, हर जगह डर है पुलिस का, मतलब पुलिस को, एंड पुलिस का भी डर है एंड पुलिस को भी डर है। मैं फिर भी तेरे से यही पूछूंगा, तू सही कह रहा है, मैं तेरी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, और ठीक है, वी आर कमिंग क्लोजर टू द सॉल्यूशन। आई थिंक मे बी आई एम नॉट आस्किंग द क्वेश्चन राइट, मे बी maybe it's a trickier answer than we expect, but तो भी ना, अगर मान ले कल को मेरे घर चोरी हो जाती है अमेरिका में, ठीक है, चल मेरे घर चोरी इज अ बैड एग्जांपल, कल को XYZ पॉलिटिशियन का मर्डर हो जाता है खुले न्यूयॉर्क में,
स्टेट लेवल पॉलिटिशियन हो, सिटी लेवल पॉलिटिशियन हो, जो भी, हाँ पुलिस आती है भाई, इंक्वायरी तो बैठेगी। हम्म, मेरी बात समझ रहा है? हाँ यहाँ पे हम पहले ही हमें पता है कि जो पुलिस आएगी ये तो इम्पोर्टेंट है सर, ये कुछ करे ना करे। मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहना राइट क्या चाह रहा हूँ? कि राइट हाँ, द डायरेक्शन ऑफ बिहेवियर कैन बी सिमिलर व्हेन इट कम्स टू पावर, बोथ ऑफ देम आर वल्नरेबल। द डिग्री टू विच आर पुलिस सिस्टम इज वल्नरेबल, कि भाई मतलब यार, हम तो ये समझ, हम लोग जो पुलिस फिल्म्स भी देखते हैं आज की डेट में, एक तो उसमें जो पुलिस के सपने का रिप्रेशन है ना, वो निकल के आता है कि भाई सिंघम ने एक डंडा मारा, 18 गुंडे दूर जाके गिरे, लड़की बच गई। हाँ दूसरा, उसमें भी हम वो फ्रिजिलिटी देखते हैं जहां पॉलिटिशियन आता है, कहता है साले जरा ट्रांसफर कर दूंगा। मेरी बात समझ रहा है? ये हमारे पुलिस कल्चरल मिथ में इस लेवल पे एम्बेडेड है हाँ कि भाई तुम तलवे चाटोगे पुलिस इसके सीएम के बाद में। हाँ ठीक है, तू होगा ही होगा क्राउडी राठौर देख ले, सेम सिचुएशन हाँ है। एकदम होगा हाँ तो ये हमारे यहाँ पे ऐसी यूनिक बात क्या है कि हमारा पुलिस इट हैज बीन रेंडर्ड सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे पावर्स हमने दे दिए अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को ज्यादा और वहां पे उतना पावर्स नहीं दिया है तो हमने वहां पे political द पुलिस फोर्स इज मोर ऑटोनमस। ऑटोनॉमस है नहीं वहां पे भी फुल्ली ऑटोनॉमस नहीं है हाँ, फुल्ली नहीं बट होगा। मतलब कुछ तह तक मैं बोल सकता हूँ कि जापान की पुलिस है हम्म बट बाकी सारे कंट्रीज में नो द पुलिस इज नॉट इंडिपेंडेंट हम्म बट द थिंग इज दैट दे हैव देयर पावर्स विद देमसेल्व्स राइट हम्म उनके पास खुद के पावर्स हैं लाइक ट्रांसफर्स के या अपने अफेयर्स के यहाँ पे नहीं है यहाँ पे हमने एक्सेस पावर्स वी हैव कन्फर्ड एक्सेस पावर्स टू आवर पॉलिटिकल मास्टर्स और वो छोड़ने को रेडी नहीं है। और वो छोड़ने को रेडी नहीं क्योंकि डरते हैं अगर छोड़ देंगे तो वो पुलिस पिटेंगे। वाले फिर हमें नहीं छोड़ेंगे हाँ हाँ हाँ। फिर तो सबका केस खोलेगा फिर तो सबका फाइल बनेगा एंड फिर सारे लोग जेल जाएंगे राइट। तो ब्रो मतलब आई एम श्योर यू मेट पीपल हु आर आईपीएस एस्पिरेंट्स, राइट, हु वांट टू बी इन द पुलिस। No, no, You've never met people like that? no, no. I've never. But I do mean, you, I've huh, interacted with IPS officers, but not aspirants. I mean, have you wondered, given that, yeah, like if I were to think of a job for myself, I'd want it to be respectful, you know? Yep. मैं चाहूंगा कि मैं वहां जाऊं और मैं अपनी डेस्क का चाहे शेयर हूं, अपनी डेस्क का तो शेयर हूं ना मैं। हाँ, अब मेरे को पता है मैं अपनी डेस्क पे भी बैठा हूं, कोई आएगा बोलेगा साले तेरा ट्रांसफर कर दूंगा, ये करके चला जा, वो करके चला जा। हाँ, एकदम There is a scene in Rowdy Rathore, and I mean, I'm not trying to say that the Indian police is anything like film police, right? My point is, films are often the way we dream, right? Films are often the way we convey some kind of a known truth in symbolic form, right? So there is a scene which depicts police helplessness उसमें, और बहुत ही ना डार्क सीन है वो। हाँ मतलब तू हिल जाएगा। तूने देखा है वो सीन जहाँ पे वो नहीं पुलिस नहीं वाला मैं आता है? मैं मूवीज देखता नहीं हूँ अच्छा, तू मूवीज देख, तो उसमें क्या होता है ब्रो, एक पुलिस वाला यशवंत सिन्हा करके एक एक्टर है, वो ही कम्स एंड ही स्टैंडिंग विद हिज किड्स आस्किंग द लोकल गुंडा टू बी लाइक, यार मेरे को मेरी ना वाइफ ढूंढ दो, गायब है। पुलिस वाला, ठीक है, गुंडे के पास। और वो गुंडा जो है ना, वो देखता है ऊपर, और हिज सन, द गुंडे का सन हैज किडनैप्ड द पुलिसमैन्स वाइफ, एंड दिस गाय, द पुलिसमैन डज नॉट इवन हैव द बॉल्स टू लुक एट द सन in the eye, be like, ये मेरी बीवी है, मेरे को वापस दो, because he's so scared. And you know, the point is, I'm not saying that's true, but it's in the proximity of what we can imagine, right? And that says a lot. हाँ exactly है ना? तो हम लोग, you've seen रंग दे बसंती, I'm sure. हाँ उस टाइम पे the fact that the defense minister might be cheating his own people, हाँ जरूरी नहीं है हुआ हो, but when that was shown on screen, we were like, हाँ ऐसा हो सकता है. That was part of our cultural imagination. Right? And I wonder कि ये what I'm curious. I'm not judging anybody who wants to be police. I think it's in some form or shape an act of bravery to still stand by, you know, whatever values of truth and justice you can hold on to under the pressure. But why do people still want to be policemen? I mean okay so the thing is that they don't realize कि कितना pressure है IPS पे right you have to maintain the law and order of that district. If you are an SP, so SP is the one who looks after the law and order of a district. So if you're an SP, then you have to look after the law and order. You have to make sure that all your police stations are functional. You have to make sure that investigations ठीक से हो रही हैं हर police station में. So all these things, मतलब बोलते हैं ना कि पुलिस वाले जो होते हैं वो बस जैसे okay I'll be a bit थोड़ा सा वो explicit but बोलते हैं ना कि चार टांग नहीं होती हैं, पूछ नहीं होते, बट होते कुत्ते हैं, इतना ज्यादा काम होता है. ओवरवर्क, राइट, ओवरवर्क, कैश ट्रैप, पुलिस फोर्स इज कैश ट्रैप, दे डोंट हैव मनी, राइट. बहुत जगह होती हैं कि गाड़ियों के लिए पैसे, गाड़ी तो आ गई बट डीजल के लिए पैसा नहीं,
राइट. बहुत जगह होती हैं कि दे डोंट हैव फोरेंसिक इक्विपमेंट, वो सब होता है. तो पुलिस अभी भी लोगों को लगता है कि जाऊंगा तो सिंघम जैसा काम कर लूंगा, राइट, डंडे चलाऊंगा, लोगों को अंदर करूंगा. So once they enter into the Indian police force, Indian police service, or if they enter as sub inspectors or constables, पहले कुछ साल तो they think कि हाँ ठीक है, they are motivated and full of passion, but soon when the reality hits them, जब उनको पता लगता है that they are handicapped and they don't have much power, they can't do anything, there's no flexibility in the police department, then that motivation fades away slowly. फिर वो है कि भैया जैसे सिस्टम चल रहा है, चल रहा है. Then the system jades you, है ना? Yeah. Which is what happens to politicians as well. Like, you know, well-meaning people will enter politics, be like, and I mean, that has been the cultural myth for long enough. Like when I was growing up and stuff, I'd hear from, you know, elders, be like, system to bhai aise hi tod deta hai aadmi ko, as if that was like some surrender to, you know, the way the world works. Like, zaruri kyun hai? But all that is fine, yeah. Like, you to understand a complex situation and its complexity, you cannot simply reduce it to atoms and be like, acha ye atom acha hai, wo atom bura hai, 1 0 black white khatam. And so I understand that the policemen, no matter what they end up becoming and being, whatever, you know, metaphor example we'd like to use for them, there is a kind of a political pressure, and that political pressure very often is because of criminal activities that they're involved in themselves, the politicians. That sort of leads to policemen being involved in criminal activities. Yep. Now, the police is invested with more than just skin in the game. They cannot, it's not just their masters, they can't bite their own skin either. Right? अगर तुम जाओगे तो अपने सीनियर को भी पकड़वाओ, वो भी करप्ट है ना? And so this becomes like this endless loop of, well, the police becomes the chore. That's how I like to say it. है ना? Now, I'm sure there are things that the police needs to take onus for too. This is a pressure, ठीक है? Pressure आ रहा है पीछे से. अपने भी तो इनके कुछ घोटाले गपले होते होंगे यार. That there must be problems within the premise of just the police too. वहाँ पे भी तो कुछ problems होंगी कि नहीं है? रिश्वतखोरी वगैरह. हाँ? Are you asking about department के अंदर वाले problems? हाँ, कि मतलब जैसे समझ रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की बनती है भाई, वो तुम पॉलिटिशियंस पे नहीं लगा सकते. इस टाइप की भी तो है ना, होंगी. राइट. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, and if you want to get a complaint registered, the least bothered, right? Many a times we have read news that rape victim walks into a police station and they are least bothered with her. बहुत ऐसा होता है कि गए, उनको पेट्रोलिंग की ड्यूटीज दी गई है, गए घूम के बस आ गए. They don't do nothing. They don't gather intelligence कि कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, right? So they are not motivated, right? Problems तो अलग है. प्रॉब्लम्स तो यू जस्ट आइडेंटिफाइड कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है. डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स है. आई एम टेलिंग यू कि क्यों प्रॉब्लम्स है, क्यों, व्हाई आर दे नॉट बॉदर्ड, व्हाई आर दे नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द केसेस. ये रीजन ये है, इसलिए है क्योंकि पुलिसमैन आर फ्रस्ट्रेटेड, राइट. बहुत सारी चीजें हैं, एज आई टोल्ड यू. कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे जिनके पास पैसे नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर्स को पैसे दें, लाइक सैलरीज दें. कुछ ऐसे हैं, आई मीन देयर शिफ्ट्स कैन स्ट्रेच अप टू 24 आवर्स टू 72 आवर्स पुलिसमैन के, राइट. बहुत ऐसे टाइम होते हैं जहाँ व्हेन दे डोंट गो बैक टू देयर हाउसेस, अगर कोई बहुत मेजर केस चल रहा हो. ओवरबर्डन विद वर्क, मतलब ओवरवर्क्ड, कैश ट्रैप, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम. अब मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ. Other day I was talking to this sub inspector in Delhi police. He said कि यार हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है, एक केस में मेरे को कम से कम 5 से 10 हजार रुपए लग जाते हैं, अपने पॉकेट से मेरे को देने पड़ते हैं. बाइक से जाओ, ये करो, वो करो. एंड उसमें क्या होता है कि मेरे 10,000 रुपए लग गए, बट दैट डजंट मीन दैट पुलिस डिपार्टमेंट विल नॉट रीइंबर्स माई मनी, बट दे डिले इट. कम से कम 30 दिन लग जाते हैं, कभी कभार 60 दिन लग जाते हैं. अब मेरे को तो यार अपना घर चलाना है, मेरे तो पॉकेट से लग गए, मेरे पॉकेट से तो 5,000, 7,000, 10,000 रुपए लग गए, उससे भी ज्यादा लग जाता है. बट देन मेरे को भी तो, आई हैव अ फैमिली टू फीड, राइट. आई हैव चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर, आई हैव टू पे देयर स्कूल का फी, राइट.
तो उससे जो होता है कि मैं पर्चा भरता हूँ विच मीन्स रीइंबर्स करने के लिए, तो वो 30 दिन बाद आता है, 60 दिन बाद आता है। तो फिर मैं वो गैप को कैसे कवर करूँ? लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई करप्शन, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्यों करप्ट है, क्यों इनएफिशिएंट है। एक सब इंस्पेक्टर जो 2 स्टार जिनके लगते हैं, एक सब इंस्पेक्टर को ज्यादा से ज्यादा 2 प्रमोशंस मिलते हैं बस, तो क्यों काम करेगा? एक कांस्टेबल को ज्यादा से ज्यादा 1 स्टार लगता है बस, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लगता है अपने पूरी जिंदगी में। Nowadays I've seen them with 2 stars, जो कांस्टेबल से 3-4 प्रमोशंस मिल जाते हैं, बट they're not happy with the jobs। करियर प्रोग्रेशन नहीं है, राइट? बहुत स्टेट्स में आप ऐसे नहीं है। झारखंड में राइट नाउ पुलिस पर्सनल आर प्रोटेस्टिंग। तो ऐसा बहुत सारा चीजें हैं कि क्यों पुलिसमैन जो है, पुलिस पर्सनल, क्यों बार बार मैं क्यों पुलिसमैन बोल रहा हूँ? आई मीन फेमिनिस्ट्स विल कम आफ्टर मी आफ्टर अंदर देख लेंगे, तेरा भाई बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं, मैंने कहीं लिख दिया था पुलिस पर्सनल। Bro, वो तो don't get bullied by that. Right, That's I'm telling you, you stop them at the gate. When no, it's not to say that they're not being fair. It's not to say that they're not being fair, right? Sometimes, you could be, let's say, well, okay, in retrospect, I could have been more inclusive, but that doesn't make you a sinner. And so you let people do not walk into. मैंने decide कर लिया, आओ, I'll show you more offense. आ जाओ, आना मत, मेरे दिल में झांक के देख पहले, बहुत साफ आदमी हूँ। नहीं मानता तो सर आजा। ब्रो मैं तेरे को बता रहा हूँ यार, मैं तो फर्स्ट हैंड देख के आया हूँ सर यार। I actually like this approach, मेरे को भी थोड़ा सा ना करना भाई, तभी तो I was saying, जैसे यार तेरे को बताऊँ, एक जैसे ना लोग, पीपल आर वेरी ना, क्या बोलूँ मैं तेरे को, वर्चुअस ज्यादा ही होने की कोशिश करते हैं स्क्रीन पे, है ना? तो मैं तेरे को बताता हूँ एक रेवलेशन। आई हैव वेरी वेराइड काइंड ऑफ इंस्पिरेशंस इन लाइफ, right? Like Gandhi will be an inspiration. He's an inspiration for everybody. Okay, he's given the soft answer. Vivekanand, oh my God, मैंने हिंदू वर्चू सिग्नलिंग भी कर दी. Oh my God, सब हो गया, ठीक है? Bro, कोई नहीं बोलता डोनाल्ड ट्रंप किसका इंस्पिरेशन है। मैं बताता हूँ, मेरा इंस्पिरेशन है एक सेंस में। यार तुम समझ रहे हो बंदे की, वो मीडिया को पिछले 6-8 साल से हरा रहा है नॉन स्टॉप। एक ये मजाक नहीं है, ये ऐसी मीडिया है दैट इज पिरानाज हैं, ये रैबिड कुत्ते, ये खा के, ये शिकारी कुत्ते वाली बात है ना, वो है, और उनको धूल चटा के भाग जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई अप्रिशिएबल काम करता है, लर्न टू वो, इसीलिए वो वर्चू को वहां से हटा के सिर्फ मॉडल देखो एज इफ, है ना? एंड यू आर लाइक ब्रो, हिम, कान्ये वेस्ट डज व्हाटएवर द शिट ही वांट्स, right? And in the era where we are moving more and more towards speech silence, because speech silos are being absolutely broadened to include everybody on Twitter and everybody on Instagram, suddenly we're in a place where even if I'm speaking privately to you, it is possible that it is public, and something that might have been private will now be viewed in the context of the public, and those are two separate domains altogether. Get on the offense before before you lose that round. खत्म भाई, आना ही नहीं मेरे नजदीक, गेट से बाहर निकलो। मैं तो इंटरटेन ही नहीं करता, क्योंकि वो बुलिंग करते हैं यार, बुलिंग करते हैं लोग। हाँ, मतलब एक जगह मैंने लिख दिया था, I just mentioned the word policeman, policeman, ऐसे कुछ किया था, हाईलाइट और नहीं, you have to be gender inclusive। अरे ठीक है यार, मैंने इंटेंशनली नहीं किया था यार। तू ये सोच, मैं फर्स्ट क्लास एट कोलंबिया, आई टुक अ क्लास ऑन कृष्णा, दिस व्हाइट गाय टीचिंग मी अ क्लास ऑन कृष्णा। तो हम लोग भगवत पुराण, भगवत गीता, ठीक है, कृष्ण सब, ये सब पढ़ते जा रहे हैं हम लोग। वी रीडिंग ऑल ऑफ दिस, राइट? दिस ब्यूटीफुल क्लास। फाइनल डे प्रेजेंटेशन देनी है, मैं रीड आउट कर रहा हूँ, और आई वाज स्पीकिंग फ्रॉम द लेंस ऑफ द डिवोटी एज इन लाइक जो भी, लाइक ही प्रेज टू कृष्णा, आई सेड, एंड दिस वुमन, ओल्डर वुमन, master's student, I'm a first year bachelor student, never been to America before. I mean, I've been to America before, never lived in an academic context in America, don't know the language, whatnot. She stands up, she's like, how dare you say he? She's like, you should have used they. Right? And everybody claps. एकदम बढ़िया। और भाई हम बच्चे 21 साल के, हमने दुनिया देखी नहीं, हम कह रहे हैं ये क्या बोल गई मैडम, हमको सब ताली क्यों बजा रहे हैं? हम घर गए, हमने बोला भाई सुनो, पान खाते हुए, सुनो भाई ये क्या होगा हमारे साथ। फिर मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था, मैंने बोला आओ तुम साले, तुम्हें पता नहीं है, तुमने पापा को पीछे से जाके थप्पड़ मार दिया है, पर पापा सामने से नहीं हिलते। ये नहीं होगा मेरे साथ। तो सही है भाई, यार तुम मतलब इंटेंट भी तो देखो ना। मैं कोई जेंडर एक्सक्लूसिव थोड़ी हो रहा हूँ ही बोल के, मेरे को पता नहीं। जब मैं पुलिसमैन बोलता हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आई एम जस्ट शनिंग आउट ऑल द फीमेल पुलिसमैन, ऑफ कोर्स नॉट यार। Like, but देख, it is also not to say that, जैसे ना, there is a line of people who will go out on a limb and say कि इंडिया में ना there is no need for feminism. No need for? Right? There is no need for feminism in India. Okay. That feminism is a corrupting ideology, and I rate them as people who say the same in Pakistan.
you're not very different, believe me. हाँ हाँ exactly. समझ रहे हो, 4% वर्कफोर्स है हमारी औरतें आज भी, जो हम मतलब 50% ऑफ आवर न्यूरॉन्स आर स्टॉप फ्रॉम बीइंग ऑनलाइन. तुम समझ रहे हो क्या कॉस्ट है कंट्री की इकोनॉमी को या ग्लोबल ग्लोबल साइंटिफिक आर्किटेक्चर को अगर तुम 50% न्यूरॉन्स ऑफलाइन कर दो अपने. मजाक है यार कोई. लाइक तो आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट फेमिनिस्ट, आई एम अगेंस्ट फेमिनिस्ट हु आर फाइटिंग द बैटल ऑन द रॉन्ग फ्रंटियर. हाँ हाँ दिस इज लाइक, समझ रहे हैं मेरी बात को यार, कि वो पेट्रियार्की वाला रिया का, और सॉरी मैं एक टेंजेंट पे जा रहा हूँ, आई होप आई एम नॉट लाइक ड्राइविंग यू विद, बट जो रिया चक्रवर्ती गेट्स आउट एंड शी इज वेयरिंग पेट्रियार्की वाला थिंग हाँ हाँ. on her It's statue. nothing to do with patriarchy. This case has nothing to do with patriarchy. Drugs लिया है तो आप जाएंगे अंदर. हाँ तुम Murder समझ किया रही तो हो. जाएंगे आप अंदर. हाँ Right? तो ये पेट्रियार्की वाली बैटल फाइट करके तुम उन लोग जो तुम्हारे साथ सिंपैथेटिक हैं उनको भी पिस ऑफ कर रही हो. मैं कह रहा हूँ बहन यार क्या कर दिया बहन तुमने. मैं घर बैठ के कह रहा हूँ यार तुम मतलब समझ रही हो, Diverting the case. तुम गांजे की नेशनल हीरो बन जाती, सारे स्टोनर हिमाचल प्रदेश से रिया चक्रवर्ती करके तुम्हें छुड़ा देते, अब तुमने पेट्रियार्की वाला काम कर दिया. हाँ एंड मतलब वही सीन है कि वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे. we'll talk about that case. मतलब although मतलब we shouldn't be talking about that case क्योंकि मतलब अब आईपीएल स्टार्ट हो गया है तो इस बारे में बात करके क्या फायदा. नहीं, वो बोलते हैं ना कि अगर केस चल रहा हो तो you shouldn't be talking about that case. But कोई नहीं, I don't give a care. I mean, I don't think we will care about us enough for that. हाँ but the thing is कि that shows कि पुलिस कितनी ज्यादा politically मतलब वो है, क्या बोलते हैं इसको, Flavored. कितने ज्यादा politicians control करते हैं. Reason why Mumbai police did not investigate and did not carry out the initial investigation was because that case was politically मतलब बहुत सारा challenge. Yeah, like it is pretty evident at this point, and I'm not sure if you feel comfortable saying that, but I think I can do some amount of honest truth telling. Is that it is very evident that there is some amount of Shiv Sena involved with all of this, which was stopping like the Mumbai police from, right? And tabhi to it had to be pushed to the center to include the CBI and the NIA and whatnot. Right. So and that is exactly what I mean. अब यार तू मेरा सोच, suppose hypothetically I am genuinely agreed कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ, he was my hero bro, what do you know, है उसके साथ कुछ हो गया. अब मेरे को पता है कि मेरा तो कट ही रहा है, पुलिस वालों का भी कट रहा है, रिया चक्रवर्ती का भी कट रहा है, पॉसिबली सुशांत का भी कट जाएगा इन द फ्यूचर. फॉर किस इनविजिबल आदमी की बेनिफिट के लिए वी डोंट इवन नो. Exactly. है ना, हमें भी. हाँ It's not like कि Mumbai police is not interested in investigating that case. हाँ. They were asked not to investigate, right? उनको forcibly बोला गया कि please do not investigate. Is this like on the record, पुलिस को बोला गया कि ये this is like under the table stuff that you heard? Under the table, unofficial. Somebody told me. Right. So it's not कि Mumbai police is inefficient, right? Mumbai police is like मतलब कुछ भी कर सकती है, right? कुछ भी करवा लो, CID है. हाँ CID types, right? Sure. But they are well equipped, right? उनके पास पैसे हैं, they're not cash strapped. बहुत पैसे हैं उनके पास, ठीक है, उनके पास सारे साधन हैं, all the equipment for carrying out all the proper investigation. But they were asked not to investigate. They were asked to delay this investigation by their political masters. ये मुंबई पुलिस being so different from say झारखंड पुलिस, is that because of the मुंबई 2008 वाला सीन हुआ था जो? Okay, so they were very incompetent, they couldn't do shit. Right. तो इस पे मैंने कुछ दिनों पहले लिखा था, and so 2000 वो जो 26/11 का जो अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया की पुलिस फोर्स got a, क्या बोलते हैं उसको, wake up call था for the machinery, for the government of India, not for the state police. कि उठ जाओ, आपके घर में भी घुस के मार सकते हैं कुछ लोग, ठीक है, एंड प्राइम टारगेट्स पे अटैक कर सकते हैं. सो आफ्टर दैट I wrote an article की how India managed to secure its borders post 26/11. If you see the statistics, एक भी major terrorist attack barring गुरदासपुर अटैक नहीं हुआ इंडियन civilians पे कभी भी उसके बाद 26. How did that happen? How did we manage to secure 1.36 और जितने भी बिलियन पीपल हैं इस कंट्री में? is because हमारी इंटेलिजेंस सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो गई. We enhanced our intelligence grid. हम अटैक होने से पहले ही लोगों को पकड़ लेते हैं. So that was our strategy कि अटैक होने से पहले ही पकड़ लो. And on record I can say कि India's intelligence grid is one of the strongest अगर देखा जाए, if you compare it with others. Yep. Really? One of the strongest. Yeah.
Really. मतलब we are हम talking. इतने अच्छे हैं, हम इतने हाँ. अच्छे हैं कि लोगों को पता ही नहीं कि हम कितने अच्छे हैं. It's like that. यार एक मिनट. When we say intelligence, we mean like Mossad and KGB and CIA, Yes. Yes. and So India has an equivalent of something like that, better than them, worse than that. हाँ एग्जैक्टली 1.36 बिलियन लोगों को बचा के रखना, राइट, उनको सिक्योर करके रखना पोस्ट 2008. हाँ, हाउ डिड दैट हैपन? हाउ डिड यू मतलब हाउ डू यू मैनेज टू secure borders every day, every hour, right? It's not that India's enemies have just said that no, we'll not carry out an attack. We have adopted a preemptive strategy कि bomb फोड़ने से पहले ही पकड़ लो इनको, right? So every other day you see कि terrorists थे, explosives बना रहे थे घर पे, पकड़े गए. Terrorists थे. The other day there was an encounter in Delhi, right? द्वारका में था, नहीं, बुद्धा जयंती पार्क में था. That ISIS का terrorist was en route to plant bombs. रास्ते में था. हाँ रास्ते में था, वो प्रेशर कुकर बॉम्ब लेके जा रहा था. And he was en route and वो जा रहा था प्लांट करने के लिए. And दिल्ली पुलिस ने नजर रखा हुआ था तब से उसको. So they were waiting for this moment to pounce. Yep. So हमारी intelligence agency, and every intelligence agency is working together. RAW, which is taking care of external intelligence, which is equivalent of the counterparts are Mossad, CIA. Acha, that's RAW. Yeah, RAW. Intelligence Bureau, which is taking care of the internal intelligence and internal security of country. NTRO, National Technical Research Organization, which is taking care of phone का tapping and ये वो वगैरह वगैरह. NTRO के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कराची से कोई भी फोन आए या लाइक कराची से कराची पोर्ट से कोई भी बोट अगर वहां से डिस्पैच होता है, बी इट अ फिशिंग ट्रॉलर और एनी बोट, हमें पता चल जाता है कि वहां से एक बोट चल गया है, उसमें नजर रखो, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है. वो इंडियन वाटर्स पे आए तो कोस्ट गार्ड को सीधे फॉरवर्ड कर दो बात. सो द इंटेलिजेंस ग्रिड ओवरऑल हैज the capabilities have boosted major, बहुत ज्यादा बूस्ट हुई हमारी capabilities. तो ये सारी चीजें हैं पोस्ट. एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन कि क्यों चेंज हुई, सो मुंबई पुलिस ही नहीं, इंडिया की सारी पुलिस एजेंसीज जो है ना 2008 के बाद चेंज हो गई. दे ऑल रेज देयर कमांडो बटालियंस एंड दे ऑल गॉट न्यू इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि पूरी पुलिस फोर्स मॉडर्नाइज हुई है, नहीं. दैट्स द थिंग जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं. Politicians are not interested in containing terrorist attacks. They give two hoots to it. उनको लगता होना है होने दो, ठीक है. But the thing that they are interested in is more money. नहीं, अगर अटैक हो गया तो the people will question us कि उसको रोके क्यों नहीं, right? So इससे अच्छा है कि you raise a commando battalion which has like 100, 1,000 or 1,500 personnel, equip them with swanky and flashy equipment. And then they will become the face of police modernization कि देखो भैया ये जो 1,000 लोग हैं इनको दिखा के बोल दो कि पूरी पुलिस फोर्स मॉडर्नाइज हो गई हमारी. They've got best equipment and everything, right? So it is better to equip. So that's the political psyche. It's better to equip 1,000 men and show them as police modernization का face कि हाँ भाई equip हो गए हैं. So they are not interested in containing terrorist attacks. No, not at all. Right? उसके बाद से मतलब तो symbolic show of एक सिग्नल है. हाँ एकदम है. आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के जो इंटेलिजेंस एनहांस हुआ उसके बाद से आई डोंट थिंक कि कोई वो हुआ है. आई मीन intentions is in the political intention is not to contain a terrorist attack. Terrorist attack हो, हमारे कमांडोज जाएं, वो एक ऑप्टिक सीन क्रिएट हो जाए, एक ऑप्टिक्स क्रिएट हो जाए कि भाई हमारे कमांडोज गए एंड दे फ्रीड ऑल दीज हॉस्टेजेस, बस वो हो जाना चाहिए. फिर हम दिखाते हैं कि हमारी पुलिस फोर्स बहुत अच्छी है. That's how it goes. Yeah. Sometimes I wonder if it boils down to like just, being more. Yeah, matlab, there is a total disrespect of rule of law in this country. On all sides. Citizens, bureaucracy, police, on all ends, those rules almost exist to be broken. Right? There is almost like, देखता क्या होता है, एक कोई दीवार होगी टूटी हुई सी है, उसमें एक तो तेरा मेन रास्ता होगा जो दीवार के बीच में से एक दरवाजा बना होगा, और साइड में से ना रास्ता एक
and you know so many people have walked that रास्ता टूटी हुई दीवार का because there is another like a footpath kind of वो समझ रहा है वो घास जो है वो उड़ गई है so many people अच्छा, हाँ हाँ हाँ, like वहां पे सामने दरवाजा है बट वो अच्छा, टेढ़े रास्ते की लोगों को आदत हो गई है दीवार के ऊपर से कूद कूद के जाने की एंड इट इज ऑलमोस्ट एज इफ वो मेन रास्ता बन गया right अच्छा, like it is almost तो मतलब maybe I'm using a bad example maybe I'm just not being poetic enough but हाँ हाँ, I there is just sheer disregard of rule of law that accumulates over a longer period of time across the different spectrums of governance. For that matter, the relationship between the people and the institutions and authority that has massive impacts on us. यार हम लोग बिल्कुल भी ट्रेड ऑफ नहीं कर पाते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म कॉस्ट मतलब इतने मोटे मोटे कॉस्ट अक्रू करते हैं हम लोग months down the line because of whims of politicians and like technological incompetence and personnel incompetence and all those jazz. मतलब हाँ, हम लोग को रूल्स तोड़ने में तो बहुत मजा आता है, राइट? हाँ तोड़ने में तो सब। I'll give you an example. मेरे एक रिलेटिव है जिनको कोविड हो गया and she recovered from COVID and you won't believe she was fined for not wearing a mask. उनको कोविड हुआ, उसके बाद वो रिकवर हुई and she was found कि violating the mask rules. उनको तो कम से कम नहीं होना चाहिए था ना, कम से कम उनको तो मास्क पहनना चाहिए although she has developed antibodies, but तब भी इन्फेक्शन रेट्स का कुछ नहीं कह सकते हैं अभी फाउची साहब आके बोल गए हैं हाँ नहीं, बट तब भी दैट शोज राइट कि जो हमें डर नहीं है पुलिस का, नहीं डर नहीं, सॉरी, डर कभी नहीं होना चाहिए पुलिस का, रिस्पेक्ट नहीं है लॉ का, यू शुड रिस्पेक्ट द लॉज, और यही चीज फॉरेन कंट्रीज में है, पीपल रिस्पेक्ट द लॉज, सिविक सेंस नहीं है यहाँ में लोगों में, राइट? मतलब हम पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे ट्रीट करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को हमारे प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करना चाहिए. सो द डिफरेंस बिटवीन एन इंडियन, या नॉट इंडियन बट हम एक ओवरऑल इफ आई टेल यू कि डिफरेंस बिटवीन हमारा देश एंड उनका देश इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे लोग जो है वो दे कैन रिलेट टू, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी है भाई, ऐसा मत करो, ये मत करो, रूल्स है उसको फॉलो करो, राइट? तो जैसे सड़क पे गंदगी करना, समझ रहे हैं? अबे भाई 2020 हो लिया है, तुम अभी भी गाड़ी खोल के अपना मैकडोनल्ड्स का कोक का डिब्बा बाहर फेंक कैसे सकते हो साले? तू मेरी बात समझ रहा है भाई? तुम भी यही रहते हो, मैं भी यही रहता हूँ, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ. जैसे ये कौन सा ब्रिज है, अरे ये दिल्ली में जहाँ आईटीओ का ऑफिस है, यमुना ब्रिज आई गेस, हाँ, यमुना ब्रिज पे एक बहुत पुराना रिचुअल है कि लोग दे स्टॉप देयर कार्स एंड दे थ्रो दैट पूजा का सामान, ठीक है? सरकार ने बोल रखा भाई मत फेंको, तब भी नहीं मानते, ठीक है? सरकार ने ग्रिल लगा दिया, ठीक है, बड़े बड़े ग्रिल्स जस्ट टू स्टॉप देम फ्रॉम थ्रोइंग दैट गार्बेज, तब भी नहीं करता. लोगों ने काट दिया है उसके बीच से कि जस्ट टू थ्रो दैट, जस्ट टू, मतलब आसानी से उनको ऊपर से फेंकना ना पड़े, वो वहीं से लेके, ठीक है? तो दैट शोज राइट कि सरकार तो अपना काम कर बहुत बार करती है, ऐसा नहीं कि सरकार कोई काम नहीं करती है, ऑफ कोर्स हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट? तो ये there is a constant battle of distrust. ये साले काम नहीं करते, हम क्यों करें? ये साले बात नहीं मानते, इन पे और रूल लगाओ, ये साले रूल लगाते रहते हैं, हम और तोड़ेंगे, and we get into this vicious spiral where because the people don't trust the government and the government doesn't trust its people. बिल्कुल. Like the Income Tax Act is the classic example, bro. इसका मैं तो सीए स्टूडेंट था ना पहले, अच्छा, ठीक है? आएंगे हर साल फाइनेंस बिल के साथ फलानी और रेगुलेशन लगा दिए टैक्स अवॉइडेंस बचाने के लिए. अच्छा, सीए बैठेंगे सारे, बोलेंगे अब बताओ कैसे इस नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है टैक्स बचाने के लिए लोगों का, क्योंकि लोग बोलेंगे और टैक्स बचाएंगे, वो और टैक्स बचाएंगे, फिर उसको दबाने के लिए वो कुछ और एक प्रोविजन लेके आएंगे. मतलब भाई पता है, अगर हम लोग अपनी एक दूसरे की बात मान लेना और तमीज से बिहेव कर ले, 20% से लेके 30% फाइनेंस बिल हल्का हो सकता है हर साल. जरूरत ही नहीं है 20-30% की, मेहनत ही सिर्फ ये चोरी रोकने में, और फिर चोरी हो जाती है क्योंकि हमारी नीयत ठीक नहीं है, ठीक है? नियत ठीक नहीं है, that's the correct word that you have used. है ना, नीयत ठीक नहीं है. तो अब ब्रो, तो ये जो अब तू करंटली इंडियन पुलिस मॉडर्नाइजेशन पढ़ रहा है, हाउ डिसअपॉइंटिंग इज इट? मतलब so I'll give you one example, ठीक है? हाँ. एक ऐसा I was talking to a senior IPS officer, वो बोलते हैं कि यार जब मैं था तो very strict, upright, honest, बहुत ज़्यादा honest, ठीक है? So जब वो when he was heading the department,
उन्होंने बोला यार देखो मेरे से जितना भी हो सका मैंने किया, मैंने 500 बॉडी कैमरास मंगाया, मैंने डैश कैमरास मंगाया, मैंने लैपटॉप्स मंगाया पुलिस फोर्स के लिए, सब कुछ किया। आई हैड प्लान्स कि मैं 40 और गाड़ियां मंगाऊं। I had plans to introduce 100 new bikes, 100 new bicycles की bicycles से पेट्रोलिंग कर सके। And for the same I had managed to convince MHA, Ministry of Home Affairs, for the funds कि प्लीज हमें साहब दिल्ली में ये नहीं, वो मैं लूंगा नहीं ना। अच्छा, लोगों को location पता, है। अगर मैं नाम लिया, अगर मैंने स्टेट भी बता दिया तो लोगों को पता चल जाएगा कौन है। ठीक है, मत बता। हाँ, तो फिर ये चोरी कर नहीं रहे थे। पुलिस प्रोक्योरमेंट में बहुत चोरी होती है, राइट? इट्स अ करप्ट प्रोसेस, बहुत चोरी होती है पुलिस प्रोक्योरमेंट में। तो ये चोरी कर नहीं रहे थे, तो जो चोरी कर नहीं रहे थे तो लोगों को अच्छा नहीं लगा बात, पॉलिटिकल मास्टर्स को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पॉलिटिकल मास्टर्स के पास भी कट जाता है। इस वाले तो रखते ही हैं, वो तो आगे भी ऊपर अपने साहब को भेजते हैं। तो ही वाज ट्रांसफर, नहीं हटाओ इनको, हटाओ। तो फिर उनमें फ्रस्ट्रेशन रहेगा ना, ऑब्वियसली। जो पुलिस वाला जो काम करना चाह रहा है, आप उसको भी काम करने नहीं दे रहे हो, तो उसमें तो फ्रस्ट्रेशन रहेगा। उसके पास आइडियाज हैं, उसके पास नए पेट्रोलिंग करने के आइडियाज हैं, साइंटिफिकली हम कैसे पेट्रोलिंग कर सके, उन सब के आइडियाज हैं, कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं करने देते पॉलिटिकल मास्टर्स। इवन इफ ए हार्ड वर्किंग कॉप एंटर्स द डिपार्टमेंट, ही और शी इज साइडलाइन कि नहीं हटाओ इसको, ये बहुत खतरा है हमारे लिए। But what are the immediate next steps for like modernization in an ideal world where Kushal was running, the modernization brigade? What do we need? What do we need to plug this problem? A couple of points over here. Training, right? Training should be the first thing that, if you ask me, I'll change the training module. सबके लिए, right from constable, sub inspector, DSP and IPS officers. Training should be the one. क्या चेंज करेगा भाई? क्योंकि ये तो 10-12 साल और पुलिस में रह के मोटे मोटे भी हो जाते हैं, समझ रहा है? ऐसे भी नहीं होते कि कोई फिजिकल ट्रेनिंग हो, कोई क्या होता है, लाइक व्हाट हैपेंस इन द ट्रेनिंग? मोटे इसीलिए होते हैं क्योंकि 24 आवर्स की शिफ्ट होती है यार। आप पुलिस स्टेशन में 24 आवर्स रहो, राइट? आप घर वापस जाओ, आप कैसे जिम जाओगे, आप कैसे भागा दौड़ी करोगे? 24 आवर्स की शिफ्ट, ठीक है? अंडरस्टाफ्ड है क्योंकि, इसलिए अंडरस्टाफ्ड है पुलिस। UN recommends कि इंडिया में 222 per 1 lakh पुलिसमैन होना चाहिए, लाइक 222 पुलिसमैन per 1 lakh population. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहती है कि 444 पुलिसमैन पर 1 लाख, मतलब डबल। उतना भी नहीं है हमारा 222 भी नहीं है, राइट? बारिंग अ कपल ऑफ स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट, मेरे को नहीं लगता कि कोई पुलिस स्टेशन मतलब कोई उसमें है। एंड हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में लोग हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि उनको सिविल साइड से हटा के आर्म्ड पुलिस में भेज दिया है, जिनका कोई काम नहीं होता, वो बैठे रहते हैं, जब राइट्स होती है तब निकलते हैं, जो 10 साल में एक बार होता है, राइट? क्यों भेज दिया फिर ब्रो आर्म्ड पुलिस में से? सो द बेसिक्स, कोई भी स्टेट की पुलिस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, सिविल पुलिस एंड आर्म्ड पुलिस। सिविल पुलिस आर द मेन हु गार्ड, हु मैन द पुलिस स्टेशंस, हु रिस्पोंड टू 100 नंबर कॉल्स एंड हु कैरी आउट ऑल द इन्वेस्टिगेशन एंड एवरीथिंग, हु आर बेसिकली अनआर्म्ड एंड जो आपसे इंटरेक्ट करते हैं। Whereas the armed police, वो होते हैं, they are organized in battalions, जैसे कि दिल्ली आर्म्ड पुलिस हो गई, झारखंड आर्म्ड पुलिस हो गई। They are kind of different from normal police. उनका काम ये होता है कि they stay in battalions, मतलब उनका quarters, उनके camps होते हैं, and they only come out when there's a riot या when there's a breakdown of law and order machinery, ठीक है? तो इसीलिए और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ आर्म्ड पुलिस ज्यादा है than सिविल पुलिस, सिविल पुलिस कम है। ऐसा स्ट्रक्चर, इन दोनों की रिक्रूटमेंट अलग होती है। आर्म्ड पुलिस के तो यहाँ पे ज्यादा लोग भर जाते हैं एंड सिविल पुलिस में लोग नहीं भर पाते हैं। तो क्यों वहां पे लोग ज्यादा जाना क्यों पसंद करते हैं? कोई काम ही नहीं, राइट? कोई काम, इंसेंटिव है? इंसेंटिव नहीं, मतलब काम नहीं है। नहीं, काम मतलब भी है, हाँ। तो डिफाइंड रूल्स है कि 8 घंटे का शिफ्ट होगा, ऐसे से होगा, राइट? तो किसी को कोई और जॉब चाहिए, so he or she can study for their entrance test, right? So they have got time to prepare for the entrance test. Whereas the civil side, they don't have nothing. time. You don't have anything. तो इसीलिए है कि मतलब सिविल पुलिस क्यों कम है। तो यार ये तो बड़ी catch-22 सिचुएशन हो गई कि एक एंड पे तो हमें और स्टाफ चाहिए, और स्टाफ आएगा नहीं क्योंकि उसको पता है अभी से पूरे स्टाफ होने की जर्नी में पिस जाएंगे ये लोग, ठीक है? ओवरवर्क्ड रहेंगे, इंसेंटिव अच्छे नहीं है और कुछ नहीं कर सकते, तो हम तो फंस गए इस सिचुएशन में।
तो आपने जो इतने आर्म पुलिस वालों को बैठा रखा है, उठा के ट्रांसफर करो। हाँ ट्रांसफर कर दो आप नहीं करते। इनको, नहीं स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर इज रियली रिजिड, ठीक है, एकदम डिफाइंड है कि ये आर्म पुलिस है तो ये है, ये कैंप में रहेगा, ये बटालियन में रहेगा, ये सिविल पुलिस है तो ये सिविल पुलिस है, ये पुलिस स्टेशन पीसीआर ये सब में रहेगा, ट्रांसफर नहीं हो सकता है, राइट? सो दैट इज वन लॉ दैट शुड चेंज, राइट? कि चेंज करो आप। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट कांस्टेबल्स एंड इंस्पेक्टर्स, बाकी हायर अप्स का तो इधर उधर जाते रहता है, आईपीएस ऑफिसर्स इधर उधर आर्म पुलिस बटालियन या सिविल पुलिस में आते जाते रहते हैं। It should change, right? Change. Training make what kind of changes do you only like say do you only advocate for softer changes in training, or do you think there should be like better training in the sense of like handling situations of समझ रहे हैं मेरी बात को, criminal activity वगैरह के sense में भी? हाँ, so there are two things to it. एक है कि softer approach तो obviously, I mean problem क्या है ना कि हमने सोच लिया कि पुलिस है आर्मी, and army is there to deal with the external enemies of the country, right? Whereas the police has to deal with citizens of the country. So you cannot have a very harsh या बहुत strong-handed approach, right? आपको बहुत softly काम करना पड़ेगा, and riots के situation में, so basically riot जो होता है ना, snowball करके एक बड़ा riot बनता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से इतना लोग आ गए, यहाँ पे 1000 लोग आ गए, दोनों लड़ने लगे। स्टार्ट्स ऑफ धीरे धीरे करके लड़े लोग, ऐसे वैसे किए, वो सब किए। तो देयर पुलिस हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले कि आप डीएस्केलेट करिए, आप बात करिए, आप कन्विंस करिए। आईपीएस ऑफिसर्स आर ट्रेन्ड फॉर दिस, आईपीएस ऑफिसर्स आर ट्रेन्ड इन डीएस्केलेशन एंड एवरीथिंग, बट नॉट द लोअर रैंक्स। इंस्पेक्टर्स ट्रेन्ड नहीं है, राइट? हु आर द कटिंग एज ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर्स एज वेल एज कांस्टेबल्स, राइट? तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से एरिया में कम्युनल हार्मनी अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाला है, अभी राइट होने वाला है। पुलिस को पता रहता है, ये सारे लोग जानते हैं कि पुलिस को पता रहता है राइट कब होने वाला है, राइट अच्छा हुआ। हाँ, कैसे? आपके इन्फॉर्मर्स हैं, हाँ, आपके इन्फॉर्मर्स बता सकते हैं कि साहब उस घर में जो है हर रात 20 लोग जाते हैं प्लानिंग करने कुछ, ठीक है, क्यों जा रहे हैं 20 लोग? साहब इस घर में मैंने सुना है कि चाकू छुरा जमा करके रखना है, ठीक है। तो पुलिस को पता रहता है बात, पुलिस को सब कुछ पता रहता है, पुलिस का नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मर इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो आप पता रहता है कि कौन आया किस घर में, कहाँ से गया। तो ये मतलब सिर्फ ऐसा तो नहीं है रोमांटिकली कह रहा है, जेन्युइनली इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है पुलिस का इन्फॉर्मर का नेटवर्क। आई मीन जो सिविलियंस होते हैं, दे आर नॉट पुलिसमैन, दे आर सिविलियंस हु वर्क एज इन्फॉर्मर्स, एंड दे आर पेड फॉर इट। हाँ, राइट, ऑफ कोर्स, आई मीन आई अंडरस्टैंड व्हाट इन्फॉर्मर्स आर। हाँ, तो पुलिस को सब कुछ पता रहता है। इट्स जस्ट दैट कि पुलिस को विल पावर नहीं है। क्यों विल पावर नहीं है? क्योंकि पॉलिटिशियंस काम नहीं करने देते, पॉलिटिकल विल पावर नहीं है, राइट? राइट तो कोई भी रोक सकता है, देयर इज नो विल पावर टू स्टॉप दैट। So bro, matlab, does it not feel frustrating to you working in this field where you understand that what you're up against is not a demodernized police force, but almost like a vasectomized police force where, you know, the political masters have taken the balls out of the dog and the dog will not run. So तेरे को मतलब ऐसे frustrate नहीं होता कि भाई मैं कितना भी कर लूं, ये तो साले मानने को तैयार नहीं है, legal changes आएंगे नहीं, structural changes आएंगे नहीं, तो तेरे को मतलब you don't feel discouraged by that? I'm not trying to discourage you. रात के टाइम मेरे को क्या ही frustration, मेरे को नहीं, just ask the police officers who are there, who have high expectations कि हाँ मैं जाऊंगा, so I'll bring some changes, ठीक है, कि पुलिस डिपार्टमेंट मेरे को याद रखे। मेरा तो frustration, मेरा तो कोई frustration ही नहीं है इसमें, मैं क्या ही हूँ, ठीक है, but ask the police officers, उनको कितना frustration, and I can assure you that police officers were not happy with the current situation. Police officers not happy with the मतलब political machinery, कोई एक machinery नहीं, the overall setup of how things work and how things should work, right? हाँ, what is हाँ please आप तो finish करना। नहीं आप please। यार मतलब देख, मेरा concern and मेरे listeners का concern, और for that matter almost anybody who'd ever hear Kushal talk about all of this, उनका concern ये है भाई, how do things get better? I think we live in very exciting times. I think it's a very brilliant moment to be alive as far as being Indians is concerned. I think it is rather unique that we can ask the question, when do things get better, instead of, oh my God, things are never going to change and I'm going to die in this sad, miserable life that I've been allotted, right? So there is we are, let's just say, at an unprecedented level of activity as a nation, at least in my lifetime, which is not a lot. Your lifetime too, which is lesser than mine. Chota hai.
नहीं, but my question is, यार मतलब it is a great thing ना कि हम टूर में बैठ के सोच भी सकते हैं सोल्यूशन क्या होगा. हाँ एकदम. ठीक है, तो सिर्फ उस हाइपोथेटिकल रियलिटी में, उस थ्योरी में क्या करें हम सब मिलके हाँ. कि ये चीज सही, मतलब do we need like better technology to map out criminals? Like how do we make the police system cleaner, better, more efficient, more effective, whatever the preferred word is? पहले तो we have to remove the political interference from the police department. जब तक उनके हाथ बंधे रहेंगे वो कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट? जब तक हाथ खोलेंगे तभी ना सामान खरीदेंगे अपने लिए, राइट? सेकंड थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर. There are many police stations in India which are still not connected via landline. ठीक है? That's the basic thing that a police station. तू मेरे को लगा तू इंटरनेट बोलेगा, लैंडलाइन नहीं है. Landline. कौन से पुलिस स्टेशन है भाई? ऐसे बस्तर ये बुस्तर में है BPR, फुलपाव? हाँ हो सकते हैं. BPRD की रिपोर्ट है जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एनुअल रिपोर्ट निकालती है. There are some police stations which are not connected even by landline, right? That's a basic thing that a police station should have, right? हाँ. वो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट का. पुलिस इंसेंटिव नहीं है पुलिस वाला बनने का, राइट? कंट्रीज में इंसेंटिव होना चाहिए. दूसरे कंट्रीज में इंसेंटिव होता है कि आपकी इज्जत की जाएगी, आपको कोई पॉलिटिशियन छेड़ेगा नहीं, आपका लोकल एमपी एमएलए आपको छेड़ेगा नहीं, या नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी रिवैम्प्ड. और क्या क्या था, मैंने कहीं लिखा भी था पता है. ढूंढना कहाँ लिखा था, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? एंड और भी चीजें जैसे कि फ्रस्ट्रेशन नहीं होना, जैसे कि you need to recruit the right people. You need to recruit them. You need to recruit experts, right? जैसे अभी पंजाब पुलिस ने स्टार्ट किया, they started to recruit cyber experts. Policemen are not trained to handle cyber crimes, right? उनको कोडिंग समझ में नहीं आती, उनको साइबर क्राइम कैसे टैकल करे वो सब समझ में नहीं आता. So you need experts for that. You need forensic experts. You need criminologists who'll do the crime mapping and everything. टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज है. एंड आई कैन, मतलब बहुत लोग हेट करेंगे अगर ये सुन रहे होंगे. लाइक मेरे घर से इस साइड इज लाइक यूपी 2 मिनट के ड्राइव पे, 2 मिनट के वॉक पे. आई कैन लिटरली सी उत्तर प्रदेश के बिल्डिंग्स. एंड सो आई हैव सीन यूपी एज इन द स्टेट यूपी. हाँ मतलब तू बॉर्डर पे रहता है? हाँ बॉर्डर. हाँ ठीक. I have seen UP police under Mayawati. I have seen police under Akhilesh Yadav, and now I'm seeing UP police under Adityanath. हाँ. सबसे अच्छा I think modernization जितना अभी हो रहा है, हाँ, उतना कभी नहीं हुआ है यूपी पुलिस का. भाई सारे भाग के हरियाणा आ गए यार गुंडे. पता है कितना हमारे यहाँ क्राइम स्काई रॉकेट कर गया योगी के चक्कर में. ऐसा होता है. हाँ? ऐसा नक्सलाइट्स के साथ भी है कि हाँ? छत्तीसगढ़ से मारते हैं तो वो झारखंड में घुस जाते हैं. हाँ? आंध्रा से मार के भगा दिया तो सब छत्तीसगढ़ में घुस गए. छत्तीसगढ़ में इतने सारे नक्सलाइट इसीलिए क्योंकि सबको आंध्र प्रदेश से मार के भगा दिया गया. हाँ. इसीलिए हमारे यहाँ गुंडाई चालू हो गई है. ये सारा जो नोएडा के आसपास वाला इलाका है ना, हमारे घर के पास, भाई बहुत गुंडाई. इससे एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट मैं सोचा था कि आई विल ब्रिंग अप दिस टॉपिक ऑफ यूपी पुलिस का एनकाउंटर का कल्चर. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर विकास दुबे. He massacred many policemen, right? उसने मारा along with his men, along with his gundas. And फिर वो बच के निकल गया. After some time, he was caught. वो आ रहा था and भाई साहब की गाड़ी उल्टी, जो भी हुआ, गोली चला. Let's leave it to the court to decide whether it was a fake encounter or not. वो कोर्ट का काम है. But you see the overall क्या बोले mentality of general public. कि they are celebrating the death of a gangster. ठीक है, अगर वो भाग रहा है तो मार दो. तो many people ask me कि क्यों नहीं आप बोलते. मैं बोला नहीं, ये सही चीज नहीं है. कोई भी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स इन द वर्ल्ड ऐसा काम नहीं करेगी, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि विकास दुबे का एनकाउंटर फेक था, नहीं होगा. एकदम लेजेंड एनकाउंटर होगा. बट you see how people are celebrating कि हाँ मार दिया. मैंने पूछा कि क्यों, तो मार भी दिया तो क्या हो गया, कर भी दिया एनकाउंटर तो क्या हो गया वाली बात ना. हाँ, so the reason they gave me was judiciary slow है तो पुलिस ठोक रही है लोगों को. तो I was like ठीक है, तो कल पुलिस स्लो होगी तो आप ही वेपन्स उठा लीजिए. एंड वो कौन करता है? नक्सलाइट लोग करते हैं. आपकी बात और नक्सलाइट की बात में तो डिफरेंस नहीं है ना. नहीं है. इंस्टेड ऑफ चीयरिंग फॉर पुलिस एनकाउंटर्स यू शुड वाउच फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स, राइट? तो ये सारे चीजें हैं. तुम बहुत A नंबर 1 बात पे आए हो. पता है क्या,
मेरे को एक बात अमेरिका के बारे में क्या पसंद है ओवर, और एटलीस्ट जो मेरा सर्कल था अमेरिका में, आई एम नॉट सेइंग जनरल अमेरिका, एटलीस्ट जो मैंने वहां सीखा, जो मैंने इंडिया में नहीं सीखा, से व्हाट यू विल, दे डूइंग अ ग्रेट जॉब एट बीइंग अ नेशन, नो डाउट, बट लाइक हाँ माय पॉइंट इज इट्स नॉट आउट ऑफ फैसिनेशन, बट इट इज आउट ऑफ जेन्युइन लाइक रिस्पेक्ट दैट आई सी फॉर व्हाट इज हैपनिंग, राइट। एक लेवल पे मैंने क्या देखा वहां पे, दैट पीपल विल स्टैंड बाय प्रिंसिपल मोर देन दे विल स्टैंड बाय पर्सनल विल्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हाँ मेरे फेवर में हो रहा है ना, चाहे लॉ वायलेट हुआ, अरे बढ़िया है, ठीक है, हमारे फेवर में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अरे तुम पता है, तुम यू आर सेटिंग अ बैड प्रेसिडेंट, हम्म, यू आर सेटिंग अ बैड प्रेसिडेंट फॉर दिस टू हैपन टू यू एट सम पॉइंट, यू एग्जैक्टली नो रिकोर्स। एग्जैक्टली मतलब हम बोलते हैं कि पुलिस वालों को जो है पीटना नहीं चाहिए लोगों को, राइट। बट अगर मान लीजिए कि आई वाज टॉकिंग टू एन आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने ये एग्जांपल दिया था, किसने दिया था मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो ही वाज टेलिंग कि लोग तो बोलते हैं कि पुलिस को पीटना नहीं चाहिए, पुलिस शुड बी सॉफ्ट, दे शुड हैव अ सॉफ्ट अप्रोच, ज्ञान तो बहुत देते हैं हमें, बट जब उनके घर पे चोरी होती है तो वो कोने में आके बोलते हैं नहीं ये ड्राइवर है, इसको पीटो, देखो इसी ने किया होगा, राइट। तो हम जो है ना प्रवचन बहुत देते हैं, बट जब हम पे बात आती है तो फिर हो जाता है चीज। तेरे को पता है मेरे दूसरे चैनल का नाम प्रखर के प्रवचन है। हाँ हाँ, तो तूने फिर सोच के ही मारा है मुक्का, ठीक है, मैं पता कर रहा था गलती से मारा है कि जानबूझ के। नहीं, यू आर राइट। और वो ना, पता है, दैट हैज, I think that has a lot to do with like the educational value too. मतलब अभी we haven't come to that stage where as a common conscious, you know, like their public conscience is not in the favor of upholding regulations. और यार पता है इसमें ना और भी चीजें होती हैं। When you see nobody doing that, you'd be stupid to do that because तुम्हारा cost बन जाएगा rule follow करना। बाकी हाँ सबको तो मिल गया जो मिलना है, right? So it's a grander system. तू मेरे को ये बता, if you were to model a police force around a country's police force, which one would it be? I cannot give you a specific example because every police force is different, हाँ, right, but and they like have their own which setup. one catches your fancy the most? Like which one you're like, bro, Kamal, sahi. I would say UK की police. UK, UK, yeah, genuinely. yeah. तू स्कॉटलैंड यार्ड की बात कर रहा है कि पुलिस की? नहीं, पुलिस की बात कर रहा हूँ, the constabulary, yeah. क्यों? The bro, I mean बहुत professional, बहुत calm and composite nature. If you call them, they're really calm. They're really composite with the nature. Right? They're really professional. उनको बात करने की तमीज है. Right? So the main point that a person looks for is कि वो कैसे बात करता है policeman. Right? कैसे interact करता है जब आप call करते हो. These things are really मतलब क्या बोलते हैं highlighted. UK police, हाँ. In I levels mean, of competence too, they're very good. really good, right? Really good. UK में police are largely unarmed, but I think India में they should carry firearms. Right? They should. I mean, Why you is the should police also. unarmed in the UK, bro? मतलब इशू नहीं होते उनको? होते हैं, होते हैं। पहले लगता था कि नहीं होते, पहले लोगों को था कि नहीं होते, बट हाँ होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। बट वो एक सिस्टम चला आ रहा है कि अनआर्म्ड है तो रहने दो। यूके की जो कैसे बोलूँ उसको, प्रोविंसेस या व्हाटएवर यू कॉल देम, राइट, वेल्स, स्कॉटलैंड, नहीं जो जितने भी होते हैं उसमें से सिर्फ एक प्रोविंस में या जो एक उनकी जो स्टेट है, जो भी बोलते हैं उनको, वहाँ पे पुलिस आर्म्ड है, नॉर्दर्न आइलैंड में, बिकॉज दे हैड इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म ओवर देयर। वहाँ पे बहुत खतरनाक नॉर्दर्न नॉर्थ आइलैंड इंसर्जेंसी। पुलिस इज आर्म्ड ओवर देयर अभी भी, पहले भी थी, अभी भी है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोविंस, आई थिंक पुलिस अनआर्म्ड है वहाँ पे। प्रॉब्लम्स तो होती है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि इंडिया में भी पुलिस को आर्म्ड होना चाहिए, लाइटली आर्म्ड, पिस्टल होना चाहिए बस, राइट। लाइक म्यांमार की पुलिस, आई वाज वर्किंग फॉर अ प्रोजेक्ट एंड उसमें मैंने एक सजेशन दिया था कि म्यांमार की पुलिस कैरीज मिलिट्री ग्रेड वेपन्स, राइट, AK-47 लगे घूम रहे हैं, जो नॉर्मल बीट कांस्टेबल। आई सेड नहीं कि ये नहीं होना चाहिए, पुलिस इज नॉट इक्वल टू आर्मी, राइट। फर्स्ट जस्ट गिव अप दीज वेपन्स, पहले तो आप ये हटाओ, क्योंकि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है आदमी पे, राइट। ये भी बहुत बड़ा चीज है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि वो AK-47 कैरी कर रहा है, वो पिस्टल कैरी कर रहा है, वो कैसे पिस्टल कैरी कर रहा है, तो ये सारी चीजें आती हैं दिमाग में। तो यूके की पुलिस इज द वन जिस पे मैं मॉडल कर सकता हूँ। और वहाँ पे ऑटोनॉमी है पुलिस को उस हिसाब से? हाँ हाँ, अकॉर्डिंग टू प्रकाश सिंह। सो प्रकाश सिंह जो थे, जो हैं, वो पुलिस रिफॉर्म्स के लाइक फादर ऑफ इंडियन पुलिस रिफॉर्म्स माने जाते हैं। ही वाज द वन who approached Supreme Court and insisted कि हम पुलिस रिफॉर्म्स करें and suggested कि हम ये करें,
and after that Supreme Court, I told you right, 2006 Prakash हाँ Singh हाँ हाँ government was one. हाँ So he was the one. So according to him, जापान की पुलिस is बहुत प्रोफेशनल, यूपी की पुलिस is very professional. तो ये सारे चीजें हैं. Right? He was the one जो जाट agitation हुआ था, तो he was called in by Haryana government to investigate the crimes. He is an What is he? Is he a policeman? ex IPS officer. Yeah. And so he was called as an ex-IPS officer to investigate the whole thing? Investigate and to highlight the names of officials who were responsible for these things. So the responsible who were responsible for the breakdown of law and order machinery. And IAS officers and IPS officers छोड़ के भाग गए थे. Police stations locked थे. Policemen were hiding in the roofs. because this guy was able to push through and like मतलब इसका बड़ा दबदबा है, दबंग है ये बंदा, full power. नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में जाट एजिटेशन में जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी, ही हाईलाइटेड कि जो सिविल अथॉरिटीज थी, जो आईएएस ऑफिसर, जो आईपीएस ऑफिसर, ब्रेकडाउन ऑफ पुलिस लीडरशिप, ब्रेकडाउन ऑफ सिविल लीडरशिप हो गया था उसमें. मतलब सिविल लीडरशिप लिटरली क्रम्बल्ड. वंस योर लीडरशिप क्रम्बल्स, आप जंग हार, राइट? जस्ट हैव टू किल द किंग एंड राइट, बैटल इज ओवर. राइट. तो वो हुआ था जाट एजिटेशन में. तो ये this is possible, हाँ? Like, you know, like a government can employ an ex-policeman to investigate stuff. हाँ, government can set a committee and अच्छा, committee. and इससे पहले हम लोग टॉपिक चेंज करें. जाट एजिटेशन आल्सो हैड, लाइक मेरे को बहुत लोगों ने करेक्ट किया था, फिर मैंने पढ़ा, फिर हाँ एक्चुअली मैं फाउंड आउट कि जाट एजिटेशन हैड अ पॉलिटिकल एंगल आल्सो. सो वी कैन नॉट जस्ट ब्लेम द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस. राइट? मैं पहले सोचता था, बट मेनी पीपल करेक्टेड मी कि नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर भी था पुलिस को कि नहीं रिस्पॉन्ड करना है. तो the reason why तुम कह रहे थे offices and like police stations got all locked and stuff, this is because ये जो this guy Prakash Singh, right? That's his name? Right. हाँ, because he was appointed because उसका मतलब इतना वो था कि ये ढूंढ लेगा, या फिर इसने पकड़ लिए थे एक्चुअली और फिर उन लोगों को फेंकना पड़ा था? नहीं. पुलिस स्टेशन लॉकअप तब हो गया था क्योंकि प्रोटेस्टर्स हैड सराउंडेड द पुलिस स्टेशन एंड वो इतने खतरनाक थे कि गोली मारे थे तो भाग ही नहीं रहे थे. पीपल वर बीइंग शॉट डेड एंड तभी भी क्राउड डिस्पर्स नहीं हो रही थी. आप समझ सकते हैं इतना खतरनाक था जाट एजिटेशन, इतना ज्यादा, राइट? तो इसीलिए पुलिसमैन गॉट स्केयर्ड कि भाई हम तो 30-40 लोग हैं एंड उधर 1000-2000 की क्राउड है, उससे भी ज्यादा होगा. मैं तो ऐसे बना के बोल रहा हूँ, बिकॉज 1000-2000 का होगा, हम तो कुछ नहीं है. एंड आर्म्स अम्युनिशन है पुलिस स्टेशन में, वो लुट जाए. हाँ, गॉड फॉरबिड कि प्रोटेस्टर्स गेट देयर हैंड्स ऑन पुलिस के आर्म्स एंड अम्युनिशन. दैट वुड बी डिजास्ट्रस. तो फिर हाउ डिड जाट एजिटेशन गेट रिजॉल्व? फिर शांत कैसे हुआ था? आर्मी को बुलाना पड़ा था. कब की बात है ये? है यार, मैं डेट एकदम नहीं बता पा रहा हूँ. 4 साल पहले, 4-5 साल पहले की बात है. हाँ. एंड people were shit scared in Delhi कि यहाँ तक ना आ जाए. कि रोहतक में, भिवानी रोहतक में जो था. हाँ, रोहतक में हुआ था. बहुत ज्यादा खतरनाक था. राइट? आई मीन पहले, हाँ मेरी गलती है कि पहले मेरे को सिर्फ लगता था कि आईएएस ऑफिसर एंड आईपीएस ऑफिसर्स एंड पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी, बट नहीं, पीपल एक्चुअली करेक्टेड मी एंड बोले कि नहीं, पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे. इंटरेस्टिंग. हाँ, दिल्ली राइट्स जो हुआ थे जो अभी थोड़े दिन पहले, तो लोग तो बोलते हैं कि हाँ चलो पॉलिटिशियंस थे, जो भी थे, जो भी इन्वॉल्व थे, ठीक है. बट आप एक और एंगल देखिए इसका. बहुत स्ट्रेटेजिकली टाइम था राइट? जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहा था तब था राइट, तब हुआ था राइट. एंड ये इसी साइड हुआ था जिस साइड में दिल्ली में रहता हूँ, मैं इसी साइड रहता हूँ. तो जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहा था, रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट आर्म्ड पुलिस बटालियंस, जो बटालियंस में रहती हैं. तो डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं भाई, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो उनकी तो सिक्योरिटी तो पैरामाउंट है. तो armed police battalions which are responsible for maintaining law and order or who are responsible for containing riots, उनको उस साइड भेज दिया था दिल्ली के, लाइक एकदम दूसरे साइड, जहाँ एयरपोर्ट एंड एवरीथिंग जो सेंट्रल दिल्ली है सब. पुलिस स्टेशंस में स्टाफ ही नहीं था. लाइक पुलिस स्टेशन तो था, बट जिनको राइट संभालना था तो थे ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो प्रोटेक्शन दे रहे थे. और ये बहुत वेल प्लान्ड था. वो जानते थे कि आर्म पुलिस बटालियंस नहीं होंगे दिल्ली में, होंगे तो उस साइड होंगे, राइट? उस साइड से इस साइड लाने में कितना टाइम लगता है भाई? लगता है यू हैव टू वो क्या बोलते हैं, उनको उस ड्यूटी से हटाना पड़ता है. अब ऐसा तो नहीं ना कि अब डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे ठीक है दिल्ली राइट्स हो रहा है तो आप लोग चले जाइए, मैं आई विल सिट अनप्रोटेक्टेड. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना. उनको तो उसकी तो अपनी भी प्रोटेक्शन होगी, सीक्रेट सर्विस वगैरह. हाँ, तो सीक्रेट सर्विस जो होती है वो
इनर लेयर Immediate. प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, तो जो आर्म पुलिस बटालियन होते हैं वो आउटसाइड वाले, घर के बाहर, हाँ घर के बाहर, घर के और बाहर ऐसा। हाँ तो हाँ लेयर्स होते हैं, अंदर की हो गई सीक्रेट सर्विस, उसके बाहर क्या होगी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ या जितने भी होते हैं। सीआरपीएफ भी डिप्लॉयड है दिल्ली में, सीआरपीएफ डिप्लॉयड है, CRPS is central सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये पुलिस फोर्स इसलिए बनाई गई है, दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड पुलिस फोर्स। ये इसलिए बनाई गई है कि लॉ एंड ऑर्डर टूट गया, खत्म हो गया, एंड लोग एकदम दे आर रनिंग अप अमोक एंड एक्टिंग लाइक सैवेजेस। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आर कॉल्ड सेंट्रल रिजर्व, and they're सीआरपीएफ। better than state police forces in terms of competence and whatnot, in terms of हाँ, effectiveness. एब्सोल्युटली, एनी डे अच्छा, एनी टाइम। and then border, there is then the border सिक्योरिटी फोर्स हाँ वो और भी better होती है या वो that is like CRPF? equally good, मतलब CRPF, BSF, Indo-Tibetan Border Police, which has the responsibility of guarding India-China border और India-Tibet border। हाँ तिब्बत का बॉर्डर लगता है, चाइना right का नहीं लगता है। हाँ भाड़ में जाए तो चाइना साला हाँ, कुत्ता बाहर में हाँ है चाइना, तिब्बत हमारे साथ। हाँ तो या तो आई मीन विल हैव अ मतलब डीप डिस्कशन बाद में कभी, प्राइवेट डिस्कशन about how that happens like नहीं ये अबाउट, हाँ, कि स्ट्रक्चर ऑफ policing, कि हाँ you have central controlled police organizations like CRPF, BSF, ITBP, Indo-Tibetan Border Police. Then we have the state police. हमारे यहाँ भी ऐसे सीक्रेट सर्विसेज होती है, जैसे मान ले जैसे वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प आया उसके बाद सीक्रेट हमारे यहाँ भी होती है हाँ, हमारे जो होते हैं उनको बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, SPG। एंड SPG उनको, हाँ, जैसे कैसे घोड़े का वो 2 पर्दे लगे रहते हैं तो उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, हाँ इनको भी सिर्फ एक चीज दिखता है, दैट इज टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। उसके हाँ अलावा कुछ नहीं दिखता है। एंड इससे लोग जाते हैं स्टेट पुलिस एंड CRPF से। सो जो आप इसमें डायरेक्टली अच्छा, रिक्रूटमेंट, you to be so good that you get recruited ऊपर हाँ हाँ, तो मतलब कि अगर आप ऐसे डायरेक्टली रिक्रूट नहीं हो सकते कि हाँ ठीक है आज मेरे को एग्जाम देने का मन किया तो मैं SPG में चला गया, नहीं, यू हैव टू हाँ बी अ पार्ट ऑफ ईदर स्टेट पुलिस और द सेंट्रल, ये CRPF, BSF, ये सब का, देन ओनली कैन यू गो टू। और हाउस अबाउट क्या कहते हैं, जैसे जी लेवल सिक्योरिटी होती है, वाई लेवल सिक्योरिटी होती है, इसमें क्या दिया जाता है, पुलिस स्टेट पुलिस ही होती है वो? डिपेंड करता है, जैसे कि जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल वाला जो सिक्योरिटी होता है वो SPG का होता है, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। उसमें भी कैटेगरीज होता है, अच्छे लोग होते हैं, फिर मीडियम लोग होते हैं, राइट, जो सबसे घटिया होता है वो गांधी लोगों को पकड़ा दिया जाता है, उस टाइप का होता है, राइट। उनके पास SPG है? हाँ, उनके पास होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी मिलता है एंड उसकी इमीडिएट फैमिली को, तो दैट्स वाई उनको मिला हुआ है। फिर आती है आपका Z+ या Z+ या Z, फिर ऐसे करके होता है। और X, ये Y, व्हाट डू these ZXY फॉल अंडर, ये किसके अंडर फॉल करते हैं, इनको क्या कहते हैं? कोई गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, जैसे BSF या CRPF? नहीं, तो क्या सीन होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो करती है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, अगर उनको लगता है कि थ्रेट है तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। लाइक बिकॉज कुछ इंसिडेंट्स मेरे फैमिली में हुई थी पहले, हाँ तो वी गॉट YXY, पहले Y+, फिर हाँ जब लगा कि थ्रेट्स थोड़ी कम है तो फिर Y, फिर X, फिर ऐसे करके so on and so on। और ये Y और X में क्या फर्क होता है? लोग का फर्क होता है, तो नंबर ऑफ पीपल, आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्वालिटी? हाँ, नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ कितने मिलते हैं, वो डिजिट्स मैं भूल रहा हूँ थोड़े, बट हाँ, वो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज और डिक्रीज, एंड ये इट्स बेस्ड ऑन योर थ्रेट वो लेवल थ्रेट असेसमेंट? असेसमेंट। हाँ, हाँ तो स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होती है, जो SIB, जो हर स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, वो जो होती है वो असेस करती है कि इस आदमी पे कितना थ्रेट है। इसलिए जो मेरी फैमिली की सिक्योरिटी थी वो बढ़ाई थी और घटाई थी, क्योंकि थ्रेट जैसे जैसे कम होते गए वैसे हटाते गए वो लोग। दैट्स हाउ इट वर्क्स। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मतलब Yeah. सिर्फ पुलिस भी पुलिस नहीं है, 25 तरीके की पुलिस है ना? 25 तरीके के, 100 तरीके पुलिस और भी हैं, अभी हमने डिस्कस नहीं करी जो। बहुत तरीके के हैं, मतलब इसमें भी एक NSG करके है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, हाँ जो ब्लैक कमांडोज, ब्लैक कैट्स जिनको बोलते हैं, हाँ वो है। फिर आपकी यही क्राइम, ये ब्यूरो फॉर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हाँ ये है। फिर और भी है, जैसे मैंने NTR बात किया, बहुत सारे से। ब्रो मैंने ब्लू यूनिफॉर्म में भी देखे हैं कुछ लोग, ब्लू सी यूनिफॉर्म होती है। आपने शायद से फिर कमांडोज देखे होंगे दिल्ली पुलिस के, दिल्ली में देखा था आपने? दिल्ली एंड अराउंड है। मतलब कुछ दिन पहले तो मैंने फरीदाबाद में ही देखा था भाई, मैंने बोला ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इस ड्रेस में लोग, समझ रहे हैं? मतलब वो हरियाणा पुलिस के कमांडोज हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस के कमांडोज भी वो पहनते हैं वो ब्लू। और कमांडोज यानी थोड़े से अच्छे ट्रेंड,
I mean हर स्टेट में एक काउंटर इंसर्जेंसी एंड टेररिस्ट स्कूल होता है CIAT करके, हर स्टेट में एक बना दिया गया है। तो वहाँ पे जाते हैं, they take a 3-month commando course and फिर they become commandos. Basically मतलब air level commandos हैं लोग होते हैं। हाँ, I mean now policemen will be irked by this, ये सुन के कि they are bare level, but हाँ they are bare level commandos। तो ये सीन होता है। ठीक है, काफी ज्ञान की प्राप्ति हुई हमें आज आपसे। एंड एक और चीज है कि हर स्टेट की पुलिस अलग होती है। हर स्टेट, आई मीन यू कैन नॉट कंपेयर जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस विद दिल्ली पुलिस, राइट? उनका एंड जस्ट टू पुट मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल पुलिस फोर्सेस इन इंडिया। बहुत प्रोफेशनल है वो लोग। तो यू कैन नॉट कंपेयर जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस विद दिल्ली पुलिस एंड दिल्ली पुलिस की विद झारखंड पुलिस। रिक्वायरमेंट्स अलग है, सब कुछ अलग है। दैट्स इट आई गेस। काफी बढ़िया ब्रो। I've had दोबारा बैठते हैं यार एक बार ना, क्योंकि अब यहाँ से जो और मोटे सवाल हैं उनके और मोटे जवाब ढूंढने हैं। नहीं, एक दिन मिलते हैं किसी दिन। 100% ब्रो, 100%. And then we'll have a long talk, deep talk on About things you cannot say on the camera. Exactly. See, violating the very premise of my show, man. All I want you is to say things that you cannot say on the camera. भाई मरवाना है क्या भाई अभी मेरे को? पता चला थोड़ा तो मर ले भाई के लिए, क्या हो गया? पता चला कि मैं हुई नहीं यहाँ, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा बाद में। ट्विटर अकाउंट भी वो डिलीटेड, सब कुछ गायब। सब गायब हो जाएगा। चल ब्रो, in any case this has been absolute fun. Thank you so much. I've learned a lot. I'll have more questions. I'll come back to you. I think I will soon. But as always, man, it's a pleasure talking to you. I mean, I think I should thank you for calling me. Thank you very much. अरे कोई बात नहीं, कल कर दियो। Thanks.